स्टार की ऑल्टीट्यूड की बात करी थी, स्टार का आर एंगल का बात किया था। The situation of the spin axis of the free gyroscope can also be described by these two parameters, tilt and drift. And tilt and drift is synonymous with or similar to the altitude and the R angle of the star. The tilt, as we have seen, varies between plus 90 to minus 90. Above the ground is positive, below the ground is negative. Tilting is negative, tilting is positive. Now, if you can imagine, एक एंड जमीन से ऊपर है, स्पिन एक्सिस का एक सिरा जमीन से ऊपर है, तो दूसरा सिरा जमीन के नीचे होगा या नहीं? अनिल? Yes, sir. All right. So, which are we talking about? एक ही साथ तो नीचे भी है, ऊपर भी है. So, it is customary to talk about that end which is pointing towards north. स्पिन एक्सिस का वो पार्ट जो कि नॉर्थ की तरफ है, उसको हम सिर्फ देखते हैं ऊपर है या नीचे है, पीछे वाले को नहीं देखते, साउथ एंड को नहीं देखते. So we talk about only the north end. North end is going up, north end is going down, north end is going shifting eastward or shifting westward. Drifting, just read on. और देखिए कुछ पढ़ने में समझ में आता है या नहीं, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करेंगे in front of the camera. So tilting के लिए TG, drifting के लिए DR. Drifting is horizontal movement of the spin axis. Left या right में movement of the spin axis is drifting. Up and down movement of the spin axis is tilting. Is it clear? Is it making any sense to you? Movement of the spin axis in horizontal plane is drifting. Movement of the spin axis in vertical plane is tilting. Is that okay or not? Yes, sir. I want more yeses or nos. Yes, sir. Clear? Okay. Yes, sir. So if the spin axis is moving easterly, that means right of the meridian, then drifting is called positive. If it is moving towards west, then the drifting is called negative. Clockwise Sir, movement of the spin सर axis. इसमें उल्टा Yes. लिखा है, वेस्टर्ली में पॉजिटिव है हाँ और लिखा है ईस्टर्ली उल्टा उल्टा लिखा है उल्टा. Make a correction here. Make a correction here. This is positive and this is negative. This is positive. सर इस पे एक क्वेश्चन पूछना था बोलिए. सर. उसके स्पिनिंग एक्सिस से भी तो चेंज हो जाएगा ना उसका मूवमेंट टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट.
तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ईस्टर्ली जा रहा है या वेस्टर्ली जा रहा है? Okay, that requires quitting from the slideshow and talking face to face. All right, this is the spin axis. इसको हम साइड व्यू से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल समझ में आएगा। यहाँ पे है, मान लीजिए इसको हम साइड व्यू से देखते हैं, ऐसा हमने पूरे को घुमा दिया। इज इट हॉरिजॉन्टल? हाँ जी सर। Supposing which end is pointing towards north? जिस पे ढक्कन निकला हुआ। जिसमें ढक्कन निकला हुआ है, the tip part is the north end. So this north end is into the ground or above the ground? Into the ground. So the tilting is Negative. Negative. If it was like this, is it above the ground? Above the horizontal? Yes. So the tilting is positive. Remember that the rotor is rotating like this. So we are talking about this and we are talking about this. Now, same thing we are seeing from the front end. Is this the north end? Yes, sir. Is it going easterly now? Yes, sir. अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है, अभी अप एंड डाउन की बात नहीं हो रही, अभी हो रही मेरिडियन से ईस्टवर्ड, मेरिडियन से वेस्टवर्ड। ओके सर, समझ गए। So spin axis can move in horizontal plane. Is it moving in horizontal plane? Yes, sir. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Very good. That means anti-clockwise. That means westerly. Yes, sir. Negative. So this is drifting, which is happening in the horizontal plane, and this is tilting happening in vertical plane. Clear? Yes, sir. दोनों मोशन साथ में चले। तो एक ये, अगर यहां से सन उस तरफ को जा रहा है ऐसे, तो ये यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, यहां से अगर इसमें भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। करेक्ट? स्पिन एक्सिस कैन रोटेट एनीवेयर। अगर सन यहाँ पे है, सन अगर यहाँ पे है और आप यहाँ खड़े हैं, तो अर्थ, when the earth is rotating, will you see the sun moving around the equator like this? Yes, sir. Apparently. Yes, sir. Westerly. But जब सन यहाँ पे होगा और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और सन यहाँ पे है, यहाँ पे है सन, तो where are you going to observe the sun? Sir, on our Okay. yes, sir. Vertical. Meridian passage. और जब यही घूम करके यहाँ पे होगी और आप यहाँ से देख रहे होंगे, तो सन कहाँ पे होगा? या Yes. यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, तो हॉराइजन पे होगा सन। हाँ जी सर। So tilting and drifting are the two parameters by which we describe the movement of the spin axis, and it is happening at 15 degrees per hour. Any doubt in that? Negative. Good. Also, the trace made by the spin axis, the north end, जो
लेजर लगी थी, लेजर लाइट, और कैनोपी पे जो लग रहा था सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में जो लाइट, लेजर लाइट चल रही थी, वो क्या शेप बनाएगा? सर्कुलर। Circular. Very good. So the trace made by the spin axis is circular of the free gyroscope. Now suppose next topic that we are talking about is describing the tilting and drifting at different locations on the earth. We said one location is equator, other location is the poles, and third location is anywhere in between, not equator, not pole, but anywhere in between, intermediate latitude. In location, we start at the equator. When we are talking about this is the equator and the spin axis is here. तो जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो कोई ना कोई तो सिचुएशन में छोड़ेंगे घुमा करके. So first we take location is equator and the spin axis is horizontal and aligned to meridian. Horizontal and aligned to meridian. Now in this case, where is the gyro star? Pointing north, sir. Pointing north, उस तरफ में. At a very long distance away, there is a star which we are calling the gyro star. As the earth is rotating from west to east, will it continue to point there itself? अर्थ के डायमीटर से जो शिफ्ट होगा, इसका लोकेशन यहाँ पे और यहाँ पे, इससे कोई फर्क पड़ेगा स्टार के डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन No, में? sir. No, sir. No, sir. So what kind of movement is observed in the spin axis when the spin axis is horizontal and aligned to meridian? What kind of movement is seen in this? Any Star tilting? सेक्शन पे दिखेगा. No change, sir. Any tilting? Vertical change? No, sir. No, No, sir. vertical change. Any horizontal movement? No, sir. No, sir. Means in this condition there is no tilting, no drifting, correct? Please define for me no tilting and no drifting that we have seen. Please define the condition in which we have observed this. At equator, sir. At equator or At the same meridian at the pole. So that gyro star. spin axis का situation क्या था? Pointing north. Pointing north. Aligned to meridian, and also it was Horizontal. Horizontal. so at equator with the spin axis aligned to meridian and horizontal, there is no tilting, no drifting. सील लग गया इस सेंटेंस पे? Yes, sir. Yes, sir. Next, to explain the next thing, azimuth angle is angle that the spin axis makes with the meridian. So in Yes, this case, when we are talking about what is the azimuth angle when there was no tilt and drift? Zero. True, correct, 100% correct. Azimuth angle was 0. Now at the same location, the second condition, location is same, equator only. पहला condition था horizontal and aligned to meridian, azimuth angle 0. Next one that we are talking about is like this. Again horizontal, but this time aligned east-west.
That means what is the azimuth angle? 90 degree. 90. Very good, 90 degree. In this case, where is the gyro star? So on the horizon. 90 degree. उस तरफ को, at a vast distance away is the star, gyro star in that direction, in this direction, because wherever the spin axis is pointing, there is a star which we are calling gyro star. Maybe imaginary, maybe fixed, actual. Correct? Yes, sir. So we start the action here. Remember that there is a rigidity of space here. So will it continue to point in the same direction? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now it is horizontal. As the earth is rotating, will it continue to point there itself? Here also there, here also there. What has happened to the spin axis? जो horizontal था, वो यहाँ पे आके क्या हो गया? वर्टिकल हो गया. Vertical. और जब यहाँ पे आएगा तो फिर horizontal हो जाएगा. फिर horizontal. फिर horizontal होगा. फिर जब यहाँ पे आएगा तो क्योंकि gyro star ऊपर है, spin में Vertical. इसको पार करके उधर देख रहा स्टार को, वर्टिकल Vertical. अगेन. Yes, sir. और जब यहाँ पे आएगा तो 24 घंटे का साइकिल पूरा. Yes, sir. तो अभी हमने इसको घूमते हुए देखा कि वर्टिकल से नॉर्मल हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज फिक्स्ड इन स्पेस. आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली इज दैट यू आर रोटेटिंग द अर्थ. इट इज फिक्स्ड. एक्चुअली दिस वाज फिक्स्ड इन स्पेस, but earth is rotating, so earth ke respect mein there is a motion. What kind of motion are we seeing then? Is it vertical plane mein motion Yes, sir. Vertical. or horizontal plane mein motion? ऐसे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं? Vertical है ना सर? Vertical plane. So vertical है ना. So एक ही जगह पे हमने देखा there was no tilting, no drifting. उसी जगह पे now we are seeing that there is total 100% vertical motion, but there is no horizontal motion. Is that correct? Yes, sir. So please once again define for me the condition in which you observe tilting happening at maximum of 15 degrees, ताकि 24 घंटे में 360 डिग्री का एक्शन पूरा हो जाता है. ये फिक्स था, अर्थ घूम रही थी. अब हमने इसको अर्थ को फिक्स कर दिया, ये घूम लिया नहीं. सर टिल्टिंग मैक्सिमम इक्वेटर पे होगी ना. Yes, equator पे है, but when did it happen? When you had the azimuth angle at 90 degree. 90. Yes. So when azimuth was 0, there was tilting which was 0. When azimuth angle was 90, there was maximum tilting happening. Are we seeing some trigonometric function which is involving the azimuth angle? 0 degree पे 0 मिला था tilting, 90 degree पे maximum मिला. कुछ Sine. trigonometric Function of sine. Function of Function of function sine. of azimuth angle. Very good. Great. Good point. So the tilting is a function of the sine of the azimuth angle. But where is it happening? Which location we are talking about? equator. Equator. At Equator. equator. So at 0 degree latitude, this maximum was happening. So latitude में 0 degree पे we got something maximum. Again, are we observing some kind of trigonometric function of latitude? Yes, sir. Go ahead. What? Yes, sir. Equator was 0, so if latitude increases, so change हो जाएगा सर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको.
0 cos. degree latitude. Cos. Cos of latitude and sine of azimuth. These are the two functions on which that 15 degrees which is happening will depend. ये 15 डिग्रीज तो हमेशा होता है, लेकिन इक्वेटर पे अजीमथ 0 करते हैं तो 0 हो जाता है, 90 करते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है. So tilting is happening at 15 degrees. Yes, all right, but also there is a function of the latitude where it is kept. Maximum 15 डिग्री कब मिलता है? जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हो और अजीमथ एंगल 90 डिग्री हो. क्लियर और नॉट? All right. So this particular action is okay. Have we understood the behavior of the free gyroscope on equator in two conditions? Number one condition, horizontal azimuth angle 0. Number two, horizontal azimuth angle 90 degree aligned east-west. Is it okay or not? दो कंडीशन में दो बिहेवियर देख लिए. एक में tilting was 0, drifting was 0. दूसरे में drifting was 0, tilting was maximum at 15 degrees. Yes, sir. Okay. So we go to the next location. कहाँ चलें? पोल्स पे. नॉर्थ पोल चलते हैं. वेरी गुड. तो जो हमने पहला कंडीशन रखा था उसी कंडीशन में इसको यहाँ ले जाते हैं. So how do I define at the pole the spin axis? How are we keeping it? जो यहाँ कंडीशन था aligned and horizontal, aligned to meridian and horizontal, उसी कंडीशन में यहाँ ले जाते हैं. तो इसका क्या हो गया? स्पिन एक्सिस को डिफाइन कीजिए अभी. वर्टिकल. वर्टिकल हो Yes, sir. गया. Vertical है, sir. So where is the gyrostar right now? Uh, Up. Again up, not pole पे. पोल स्टार. इस बीच में अर्थ घूम रही है. ये रिजिड है तो वहीं देखता रहेगा ऊपर की तरफ. कोई मोशन, एनी मोशन बीइंग ऑब्जर्व? no, sir. No. So at poles, location number 2, at poles, condition number 1, the spin axis or vertical, no tilting, no drifting. Earth is rotating happily and this is stationary, pointing out there, no movement, no vertical movement और horizontal movement का तो सवाल ही नहीं उठता है. Tilting 90 है यहाँ पे. टिल्टिंग 90 कैसे हो गया? ये तो टिल्ट एंगल है, हमने वर्टिकल रखा है. टिल्टिंग आईएनजी, इज इट चेंजिंग? No, sir. Negative. Horizontal. जीरो है ना? Rational horizon से तो इसका एंगल ऊपर की तरफ है ना सर. रैशनल होराइजन से एंगल है, ये तो ठीक बात है. हमने इस कंडीशन में वर्टिकल रखा. सिंपली हमने ये कहा कि हम जायरोस्कोप को लेके चलते हैं पोल पे और स्पिन एक्सिस को घुमा दिया वर्टिकल करके यहाँ पे. सर अब इससे कितना एंगल है? ड्रिफ्टिंग 90 चल रही है कांस्टेंट पे. एग्जैक्टली. तो हमने इसको वर्टिकल रखा, मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री तो है ही, इससे 90 डिग्री तो है, बट उसका कोई रोल प्ले नहीं है. वी आर जस्ट सीइंग द बिहेवियर एट पोल्स व्हेन इट इज वर्टिकल. नो टिल्टिंग, नो ड्रिफ्टिंग. ओके सर. नाउ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नो सर, वो कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा. यस. तो जो यहाँ पे अलाइन टू मेरिडियन था वही हमने इसको लेके गए वहां पे पोल पे. तो वही बिहेवियर जो यहाँ पे था, नो टिल्टिंग, नो ड्रिफ्टिंग, रिमेन्स द सेम वे, नो टिल्टिंग, नो ड्रिफ्टिंग. नाउ सपोज द सेकंड कंडीशन वेयर अजीमुथ एंगल वाज 90 डिग्री. इस कंडीशन में यहाँ लेके जाएं. So please define the situation of the spin axis with at the pole here now. पहला कंडीशन में हमने क्या बोला? टिल्ट सर दूसरे कंडीशन में 0. नो ड्रिफ्टिंग, नो टिल्ट. यस. तो वो तो अगला स्टेप है ना, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ
कि अब इसको डिफाइन कीजिए, जो सेकंड कंडीशन में था वही लेके गए यहाँ पे। अभी स्पिन एक्सिस को डिफाइन किया, सॉरी इसको स्पिन एक्सिस को डिफाइन कीजिए किस कंडीशन में है? Horizontal Sir, as a spin axis. Yes, horizontal. Now second condition, spin axis horizontal at pole. Now right now it is looking at a tree here. इस ट्री को देख रहा है, मान लीजिए मेरी उंगली एक ट्री है, उसको देख रहा है। अर्थ इज रोटेटिंग, वो ट्री तो अर्थ पे लगा हुआ है, तो वो ट्री तो घूम करके आ गया और ये रिजिड है, तो वो उसी तरफ देखेगा, जायरो स्टार तो वही है। तो विल दिस हैपन और नॉट? यस सर। अगर Yes. हमने इसको स्टेशनरी कर दिया तो इज इट मूविंग लाइक दिस? अगर अर्थ को स्टेशनरी कर दिया तो ये घूमता दिखेगा कि नहीं? यस सर। yes sir. सो विच काइंड ऑफ मोशन आर यू सीइंग? यहाँ पे आपने देखा था टिल्टिंग, जिसमें कि ये वर्टिकल प्लेन में चल रहा था, और Drifting. यहाँ पे वही चीज क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल। ड्रिफ्ट होगा ना सर, हॉरिजॉन्टल ये मोशन। ड्रिफ्ट हो गया सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एंगल। ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग। तो जो यहाँ टिल्टिंग मैक्सिमम थी, ड्रिफ्ट जीरो, यहाँ पे टिल्टिंग जीरो हो गया और ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम हो गई। यही चीज यहाँ पे था, तो ये टिल्टिंग था। यही चीज यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम होगी। ड्रिफ्टिंग हो गया। सर समझ नहीं आया सर, ये Drifting हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन कैसे बोलते हैं सर? जैसे आपने इक्वेटर भी बताया सर, वो वर्टिकल कैसे हो गया सर? क्योंकि प्लेन तो सेम ही दिख रही है सर इक्वेटर पे और पोल पे तो। ओके, हॉरिजॉन्टल ये है या नहीं? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं? आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं या नहीं? अरे यार कौन आता है उल्टा से। इज दिस हॉरिजॉन्टल? इज दिस हॉरिजॉन्टल? इज दिस हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। आप ध्यान कीजिए, एक आदमी जो यहाँ ऐसे खड़ा है, इसका पैर जमीन पे, जो नीचे खड़ा होगा आदमी वो ऐसे खड़ा होगा, लटका नहीं है वो। जो हम यहाँ ऐसे खड़े हैं पैर जमीन की तरफ, जो अर्थ के दूसरी तरफ है वो उल्टा लटका होगा एक्चुअली, वो भी खड़ा है। एक जो यहाँ खड़ा है, एक जो यहाँ खड़ा है, एक आदमी दूसरा यहाँ ऐसे खड़ा है। इसका पैर और उसका उसका पैर जमीन की तरफ ही होंगे ना जब खड़े होगा, ठीक है, आ गया समझ में सर। है? तो एक आदमी जो खड़ा है यहाँ वो ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, जो पोल पे है वो ऐसे खड़ा है। ये सारे वर्टिकल्स हैं, अपने अपने जगह पे सब वर्टिकल ही है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो गया। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल था ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये, यहाँ पे वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये। जब सोएगा तो ऐसे सोएगा, यहाँ सोएगा तो आदमी यहाँ, सोएगा तो आदमी यहाँ, सोएगा तो आदमी यहाँ, ऐसे। ये सोया मतलब हॉरिजॉन्टल, खड़ा हुआ तो ऐसा, यहाँ पे सोया तो ऐसे, खड़ा हुआ तो ऐसे, यहाँ पे आदमी सोया तो ऐसे, खड़ा हुआ तो ऐसे। तो इसका पैर और इसका पैर दोनों आपस में क्यों होंगे? एक का मुंडी यहाँ, एक का मुंडी यहाँ, दोनों खड़े हैं। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हुआ कुछ? यस। ओके, सो नाउ व्हाट वी सेड कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ जो हॉरिजॉन्टल में ये मूवमेंट थी विच वाज इन वर्टिकल प्लेन, becomes in which plane? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन। Horizontal plane.
तो जो टिल्टिंग थी इक्वेटर पे वही हो गई ड्रिफ्टिंग पोल पे। इन विच कंडीशन लोकेशन हैड टू बिकम 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ड्रिफ्टिंग वाज 0, ड्रिफ्टिंग बिकेम मैक्सिमम। ये 24 घंटे में एक साइकिल पूरा हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम किस लोकेशन में हुई? इक्वेटर पे 0 था, लैटिट्यूड 0 डिग्री। जब 90 डिग्री पे गया लैटिट्यूड तो ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम हुई। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन हियर? विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन। Yes. साइन फंक्शन। साइन सर। सो इसमें अज़ीमुथ एंगल का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसको हम कहीं पे भी रखें, इसको हम कहीं पे भी रखें, सारे मेरिडियन किसी न किसी से तो अलाइन रहेगा ही। ऐसे रखे तो इससे अलाइन, इससे रखे तो इससे अलाइन, इससे रखे तो इससे अलाइन। लेकिन यहाँ पे इधर हो सकता है कि हम मेरिडियन से अलाइन नहीं, यहाँ पे हम कहीं पे भी रखेंगे तो किसी न किसी मेरिडियन से अलाइन है, तो अज़ीमुथ एंगल का कोई रोल प्ले नहीं है। सिर्फ हमने ये देखा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे 0 ड्रिफ्टिंग, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे मैक्सिमम 15 डिग्री के रेट पे हो रहा है, क्योंकि अर्थ घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर 15 डिग्री पर आवर के रेट पे घूमती है। सो ड्रिफ्टिंग इज 15 डिग्री, बट at equator it is full, at pole it is maximum, at equator it is 0. Sin 0 is equal to 0, sin 90 is equal to maximum 15 डिग्री पर आवर। Getting somewhere? यस सर। So tilting TG is equal to 15 डिग्रीज। वो तो होता है मैक्सिमम, लेकिन कभी होता कभी नहीं। किन किन फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा था ये 15 डिग्री? लैटिट्यूड। विच फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड? अभी बात किया था, कॉस ऑफ लैटिट्यूड, ऑल्सो एजिमुथ एंगल। व्हाट ऑफ एजिमुथ एंगल? साइन Sine Sine. of azimuth angle. So tilting is equal to 15 degrees cos latitude sine azimuth per hour of time. That's the formula for tilting. And Sir, एक बार- drifting का formula is, yes Sahil, Sushil? सर एक बार फिर से रिपीट करना, ये 15 डिग्री भी आएगा उसमें फॉर्मूले में? अभी हम सारा कुछ स्लाइड पे भी देखेंगे, रिपीट करेंगे, ओके ओके। ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। अभी बेसिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है, जब लिखा हुआ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट हैविंग strength enough to go on the board for all this today, only for today. I beg your pardon, बड़ी थकान है। नो सर, इट्स ओके, नो इश्यूज। Yeah, so 15 डिग्रीज, वो तो डिग्रीज जो मूवमेंट हो रही है वो डिग्रीज में हो रही है ना, एंगल ही तो चेंज हो रहा है। टिल्ट इज अ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन में, एंड ड्रिफ्टिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिग्रीज तो एंगल है तो डिग्रीज होगा ना। यस सर, यू राइट। So 15 degrees cos latitude sine azimuth per hour of time is the tilting, and 15 degrees sine latitude is the drifting per hour of time. 15 degrees sine latitude per hour is the rate of drifting. इक्वेटर पे ले जाएंगे, sin 0 is equal to 0, 15 का 0 कर देगा वो। पोल पे ले जाएंगे, sin 90 पे लेके जाएंगे, 15 डिग्री तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, sin 90 इक्वल टू 1, 15 डिग्री, पूरा 15 डिग्री के रेट पे 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। सो अभी हमने देखा कि इक्वेटर पे टिल्टिंग मैक्सिमम, पोल पे, अच्छा, इक्वेटर पे टिल्टिंग मैक्सिमम, ड्रिफ्टिंग 0।
वही जब हम पोल पे लेके जाते हैं तो ड्रिफ्टिंग मैक्सिमम, टिल्टिंग जीरो। जीरो। तो बीच में क्या होगा? 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री। What will happen to the spin axis? Because now we know the formula. Tilting will be a sign of the latitude. Sorry, drifting will be sign of the latitude. Tilting will be cos latitude sine azimuth angle. Correct? Yes, sir. So calculate कीजिए और बताइए at 35 degrees north what kind of tilting and drifting we are going to observe when the spin axis is starting with horizontal condition and aligned to meridian. What we are talking about is that equator 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे it is not on the equator, not on the equator, equator यहाँ पे, it is equator से ऊपर aligned and horizontal. इस condition में please calculate how much of drifting and how much of tilting should take place. $35 degree north. सुभाष सर कैलकुलेट कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए प्लीज। सुभाष जी हैं? सर कैलकुलेटर अंदर रखा हुआ है सर, नहीं तो है? कैलकुलेटर नहीं है सर पास में। तो क्या हुआ, मोबाइल तो है ना? मैं नॉर्मल वाला सर, साइंटिफिक नहीं है। तो उसको लैंडस्केप में करो, साइंटिफिक हो जाएगा। ऐसे खड़ा रखेंगे तो नॉर्मल होएगा, लैंडस्केप में मोबाइल कर देंगे तो साइंटिफिक हो जाएगा। हो गया? आ गया कि नहीं? प्रैक्टिस नहीं किया होगा कैसे दबाना है, फंक्शन कैसे, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ नया सेटअप होगा, लेकिन हो गया कि नहीं? साइंटिफिक बन गया कि नहीं मोबाइल आपका? सर नहीं चल रहा सर, वो कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा। कल कर दूंगा सर पक्का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माफ किया आपको। और कोई तो बता दो भाई 35 डिग्री नॉर्थ पे। ये संदीप ड्रिफ्ट आ रहा है 7.8 डिग्रीज पर आवर। ओके 7.8, एक घंटे में 7.8 आएगा। टिल्टिंग का क्या होगा? रिमेंबर द स्टार्टिंग कंडीशन। स्पिन एक्सिस को हमने किस कंडीशन में शुरुआत करी है? तो टिल्टिंग जीरो होगी क्योंकि अजीमुथ जीरो है। ओके वेरी गुड। तो जो स्टार्टिंग कंडीशन था, अब अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे आगे और कुछ बहुत रिलेटेड है। जब हमने इसको अलाइन करके रखा था एन उस टाइम पे 7.8 डिग्री से ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुआ, लेकिन एन उसी टाइम पे टिल्टिंग जीरो थी। क्यों जीरो थी? क्योंकि अजीमत वो पॉइंट कर रहा था नॉर्थ में। बिकॉज अजीमथ एंगल वाज जीरो, साइन अजीमथ जीरो। बट एक घंटे बाद क्या होगा, या एक घंटे बाद क्यों, एक ही मिनट बाद क्यों अजीमथ एंगल क्रिएट हो गया या नहीं? ड्रिफ्टिंग हुए तो मेरिडियन से थोड़ा खिसक गया कि नहीं? यस सर। यस सर। थोड़ी देर, 1-1.5 मिनट के बाद अजीमथ एंगल क्रिएट होना शुरू हो रहा है। यस सर। अगर एकदम
माइक्रो में जाएं तो साथ ही साथ ले दे के शुरू हो गया, जैसे ही 0.000001 एंगल क्रिएट हुआ एजिमुथ एंगल, टिल्टिंग शुरू हो गई होगी. यस सर. That means at given latitude, tilting and drifting both are happening. यस सर. Depending on the latitude, थोड़ा ये ड्रिफ्टिंग, थोड़ा टिल्टिंग दोनों होगी. एक्सट्रीम में एक चीज होता है, एक नहीं होता है. पोल पे ड्रिफ्टिंग होती, टिल्टिंग नहीं होता. इक्वेटर पे टिल्टिंग होती, ड्रिफ्टिंग नहीं होता. बीच में दोनों थोड़े थोड़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड. करेक्ट? यस सर. So this is the whole concept of the behavior of free gyroscope on the rotating earth. 3 locations, एक लोकेशन में 2 कंडीशन, दूसरे लोकेशन में 2 कंडीशन, तीसरे में सिंपली इतना कि जो थोड़ा लैटिट्यूड के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा दोनों होगा. सिंपल एज दैट. सर एक डाउट है सर. बोलिए. एक बार वो फर्स्ट कंडीशन समझा देंगे फिर से, जो इक्वेटर पे वी आर फेसिंग ईस्ट वेस्ट, एक बार वो दोबारा समझाएंगे. Okay. Give me a moment. My mouth is getting dry. Just one second. All right, so here we have the Earth. Can you see the equator? Can you see the equator? Yes sir. And can you see the meridian also? Yes sir. टेढ़ा है, 90 डिग्री पे नहीं है, बट nonetheless okay. So पहले कंडीशन में azimuth 0. Yes sir. Gyrus on that side. Yes sir. Earth keeps on rotating, nothing happens. It Yes is sir. Same. always pointing in the same direction. So no Yes. tilting, no drifting. No That tilting. is okay. Yes sir. Now for the second condition, when it is aligned east-west, or rather east-west, the spin axis is like this, the rotor is rotating like this. My Yes hand, sir. the rotor, Yes sir. and the spin axis is like this. In this condition, is the gyro star in that direction? Yes sir. तो ये उधर ही देखना चाहेगा या नहीं? Yes sir. जब इस कंडीशन में हमने देखा तो इज दैट हॉरिजॉन्टल? Yes sir. Horizontal. अगर वो वहीं पे देखना चाहेगा तो विल इट बिकम लाइक दिस? यहाँ पे जब अर्थ घूम के आएगी, अर्थ घूम रहा है, तो अगर उसी तरफ देखना है जो यहाँ पे था, अगर इसी कंडीशन में रहेगा, रिजिड है, ये मुड़ता नहीं, इट इज रिजिड इन स्पेस. सो स्पेस में ऐसे ही रहेगा ये. Yes sir. Same direction. तो जो हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ वर्टिकल हुआ या नहीं? हाँ सर. Vertical होगा. यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं? Yes sir. Horizontal. यहाँ पे उल्टा Vertical. वर्टिकल हुआ या नहीं? Yes sir. ये एंड यहाँ आसमान को देख रहा था, ये एंड अब जमीन को देख रहा है या नहीं? हाँ सर. Tilting होगी. क्यों देख रहा है जमीन को? क्योंकि gyro star is on that direction. Yes sir. It is still pointing there in Yes. that direction.
सो आर वी सीइंग, अभी जो ये तो रिजिड था, अर्थ घूम रही थी, रिजिड था ये, अर्थ घूम रही थी। समझ आ गया, अंडरस्टूड। अगर अर्थ को हमने रोटेट करना बंद कर दिया तो आर वी गोइंग टू सी इट लाइक दिस? इट विल टिल्ट। आपने एक पेपर का बॉल बनाया और पानी में फेंका, पेपर का बॉल बना के पानी में फेंक दिया, व्हेन द शिप इज स्टीमिंग, व्हाट डू यू सी? What will happen to the paper ball as it hits the water? What do you see? पीछे जाएगा। And there was an ant sitting on that paper. एक चींटी बैठी हुई थी। आप जो पेपर को जाते हुए देख रहे थे, उसी पेपर पे एक चींटी बैठी हुई थी। उसको अर्थ, वो पेपर घूमता हुआ दिखेगा, पीछे जाता आगे जाता दिखेगा, वो क्या देखेगी? शिप आगे जा रही है। शिप आगे जा रहा है, तो वही चीज होगा या नहीं? अगर हम जायरोस्कोप पे बैठ जाएं तो हाँ, जायरोस्कोप स्टेशनरी, अर्थ घूमती नजर आएगी, अर्थ ऐसा ऐसा हो रहा है। अर्थ पे खड़े हो जाएं तो जायरोस्कोप घूमता नजर आएगा। Yes, sir, gyro will go. Yes. That's what we are saying. There is an apparent motion. Actually, the gyroscope is fixed in space. It is not moving, but अर्थ चूंकि उसके बगल में खड़े होकर घूम रहा है और मैं अर्थ पे खड़ा होकर के स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि वो घूम रहा है। जैसे हम तो अपनी जगह खड़े रहते हैं, अर्थ पे हमारा टेबल चेयर सब फिक्स्ड है, लेकिन आसमान में तारे घूमते नजर आते हैं, सूरज घूमता नजर आता है, चांद घूमता नजर आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रही है, लेकिन हम अर्थ पे बैठ के स्टेशनरी मान रहे हैं अपने आप को, इसलिए बाकी सारी चीजें घूमती नजर आती है। तो स्पिन एक्सिस भी एक्चुअली फिक्स्ड है, लेकिन हम अर्थ पे जो घूम रही है उसी घूमते पे बैठ करके देख रहे हैं, तो लगता है हम तो फिक्स्ड है जी, ये जायरोस्कोप घूम रहा है। एपरेंट मोशन, घूम हम रहे हैं, बोलते हैं कि जायरोस्कोप घूम रहा है, लगता है apparently motion, apparently appearing to move. Are we good? Yes, sir. किसने कहा? देव, आपने कुछ कहा? Yes, sir. We are good. Okay, good. So now we will review this in black and white. We are going to the slide. So going to the slide now, sharing the screen. 1 second. ये क्या हुआ? One second, please. Okay, is the screen visible now? Yes. ओके, तो टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग के बारे में बात करी हमने। नाउ दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड इन दिस क्लास। फ्री जायरोस्कोप ऑन, सॉरी, ऑन होना चाहिए यहाँ पे, क्या क्लरिकल मिस्टेक है ना, देयर शुड बी ऑन। फ्री जायरोस्कोप ऑन द रोटेटिंग अर्थ। नाउ रीड एंड वेरीफाई your understanding. Are you understanding what you are reading or is it having some difficulty? कुछ भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करूंगा।
Next, take a look at this diagram. Try to figure out what it is saying. Remember that the gyroscope is always rigid in space. It keeps on looking in the same direction at all times. That means in this condition here, in this condition also here, in this condition also, in this condition also, any condition, it is always looking westward here on the screen. But Earth is rotating. So Earth पे जहां पे ये रखा होगा उसका situation keeps on changing. Please verify your understanding. सर इस केस में टिल्टिंग हो रही है ना सर? What is the view? अर्थ को आप किस व्यू से देख रहे हैं? ये तो नॉर्थ से देख रहे हैं हम लोग, तो वो नॉर्थ पोल से देख रहे हैं. यस सर. मतलब ये इक्वेटर पे रखा हुआ लगता है. यस सर. मतलब ये tilting है. Your assessment was very correct. This is an example of tilting. बढ़िया. Next. Or do I need to explain this again? Everyone? If you see here at 00 hours it was horizontal, 04 hours it is still pointing in the same direction. ये तो वहीं पे दिख रहा है, लेकिन जो जिस प्लेस पे है उसका हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया. Is there an angle created? Is it positive tilting or negative tilting? पॉजिटिव tilting. नेगेटिव क्यों है? ये अर्थ से ऊपर चला गया कि नहीं? पॉजिटिव. हॉरिजॉन्टल से ऊपर है या नहीं? आसमान में देख रहे हैं कि नहीं? गर्दन ऊपर है कि नहीं स्पिन एक्सिस की जमीन से? अगर हॉराइजन पे देख रहा होता तो ऐसे होती या नहीं? ये हॉराइजन पे देख रहा हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल से ऊपर को देख रहा है कि नहीं है? तो एंगल जो क्रिएट पॉजिटिव वो जमीन से ऊपर का है या नहीं? So this Yes. is positive. What we are saying is the negative here. ये ऐसा है और इसमें घुसता हुआ नीचे की तरफ देख रहा है ये जमीन में. जमीन का हॉरिजॉन्टल तो ये है और इसमें स्पिन एक्सिस भीतर घुस रही है या नहीं जमीन के नीचे? व्हाट से? सही है? यस सर. All right. So next. Now tell me what you are observing in this case. ड्रिफ्टिंग हो रही है. Drifting is what you are seeing, correct? पहले sir, हमने drifting. यहाँ पे अलाइन किया था. ये हमेशा उसी डायरेक्शन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ये मेरिडियन सारे एक ही मेरिडियन है, वही मेरिडियन है जहाँ पे रखा था. सॉरी. सो एज यू कैन सी यहाँ पे अलाइंड है, फिर यहाँ थोड़ा सा फर्क हुआ, फिर और ज्यादा फर्क हुआ और ज्यादा फर्क हुआ. सो आर वी क्लियरली ऑब्जर्विंग द केस ऑफ ड्रिफ्टिंग, राइट? यस सर. What kind of latitude are you seeing? Is it 0 or 90 or intermediate?
इंटरमीडिएट टिल्टिंग भी हो रहा है। यस, जब हमने यहाँ पे इनिशियल रखा था तो टिल्टिंग 0 थी, हॉरिजॉन्टल था, अलाइंड था, बट जैसे जैसे टाइम होना शुरू हुआ ये ड्रिफ्ट तो हो गया, साथ में जमीन से ऊपर भी उठ गया। सो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्या हुआ? इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर what you are saying, positive tilting ऊपर की तरफ। यहाँ पर ड्रिफ्टिंग ईस्टवर्ड है वेस्टवर्ड? ईस्टवर्ड। So that is also positive. In the northern hemisphere both are positive. जब हम एक बार इसको हॉरिजॉन्टल करके रखेंगे तो टिल्टिंग भी ईस्टर्ली होगी और अपवर्ड मूवमेंट जो होगा वो दैट इज टिल्टिंग विल बी अपवर्ड मूवमेंट व्हिच इज पॉजिटिव टिल्टिंग। सर ये So, टिल्टिंग just- का एक बार एंगल बना के दिखाएंगे कैसे कैसे पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि डायग्राम से तो ये नीचे जा रहा है ऐसा लग रहा है सर। Okay. I am exiting from here. This requires demonstration on screen on the camera. So now we are again faced with a situation where there is an intermediate latitude बीच में, not equator, not poles, not equator बीच में. Right now is the gyro star in that direction? वहां को होगा? यस सर। होगा ना? Now Earth is rotating. Condition is aligned to meridian and horizontal. ये स्टार्टिंग कंडीशन। थोड़ी देर में क्या होगा? अर्थ घूम रही है, तो विल इट ट्राई टू मेंटेन दैट रिजिडिटी और नॉट? ये अभी तक जो वहां देख रहा था वो उधर ही देखता रहेगा या नहीं? यस सर, अंडरस्टूड। तो अब देखिए, इस मेरिडियन से अलाइन किया हमने, इस मेरिडियन से अलाइन किया और हॉरिजॉन्टल है। When it is trying to keep on looking at that gyro star, see how the drifting is taking place. ये मेरिडियन से किस तरफ को चला गया है? ईस्ट। Easterly. That is what we said in northern hemisphere. Drifting is easterly. ठीक है? And what is also the condition? Tilting. Is it no longer horizontal? Remember, यहाँ पे हमने horizontal रखा था इसको. As it is going here, drifting किधर को हो गई? अप साइड हो पॉजिटिव। और tilting क्या हुआ है? Tilting क्या हुआ? Tilting क्या हुआ? Is it above the ground now? अगर नहीं तो ऐसे समझिए, आप तो समझ में आएगा कि above ground हो गया। above ground हुआ कि नहीं? यस सर। When it is in the southern hemisphere, again aligned to meridian, intermediate latitude, but southern hemisphere. Right now, the gyro star is in that direction or not? So it will maintain that orientation. Yes. So अभी हम इसको यहाँ पे भी एक मेरिडियन बना देते हैं। So we made a meridian here और इसे अलाइन कर दिया इंटरमीडिएट पे। It is aligned to meridian in this direction. Earth is rotating from west to east. So जब यहाँ से अभी right now again meridian पे है, horizontal and meridian पे, gyro star there. So will it continue to look
at the gyro star only as the earth is rotating. So which side there is this drifting? So West, negative. west. Aligned है, अभी aligned है, as it is going in this direction. Drifting is Drifting west side, West. sir. Negative. West. negative. और इसको अगर ज्यादा घुमाते जाएं तो समझ में आएगा कि where is it looking? Into the ground or above the ground? Into the ground. So negative tilting. Yes. So southern hemisphere में both negative tilting and drifting. Northern hemisphere में both positive tilting and drifting. Are we clear? यस बल्ले बल्ले. हाँ जी सर, अब लंच Yes, sir. चलिए आज छुट्टी करते हैं, अगली क्लास में और आगे बात करेंगे. हमने फ्री जायरोस्कोप समझ लिया, हमने बिहेवियर देख ली, प्रॉपर्टीज देख ली, उसका बिहेवियर देख लिया कि कैसे बिहेव करता है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ 3 थिंग्स: rigidity, precession and also earth gravity to make compass. Next class में. ओके सर. Bye bye. Have a great day all of you. Okay, sir. Thank you. थोड़ा एंगेज हो गए हम तो नींद खुली मेरी, नहीं तो आई वाज डाइंग विथ स्लीप. अभी आधे घंटे सर- पहले क्लास के आधे घंटे पहले 36 घंटे चला करके पहुंचा हूँ गाड़ी. चलो ओके, मिलते हैं अगले वाले ने वीक कराएंगे क्या? क्या. सर डैम्पिंग एरर वाले न्यूमेरिकल भी इसी वीक करवाएंगे आप? सब कुछ कोशिश करेंगे कि सारा खत्म कर दें, और जो नहीं होगा वो एग्जाम के बाद भी 1-2 क्लास ले लेंगे. अगर नहीं होगा तो प्राइवेटली हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से. नहीं होगा तो मैं 1-2 क्वेश्चन फ्लैश कर दूंगा, कुछ आंसर्स फ्लैश कर दूंगा, सो दैट यू हैव क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखना है. कॉन्सेप्ट में सारे क्लियर कर दूंगा. ओके सर. नहीं सर, इंटरनल में भी आएंगे ना क्वेश्चन उसके डैम्पिंग एरर के, इसके लिए पूछ रहा हाँ आएंगे, वो समय करा दूंगा, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे. अगले जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा तेजी से पास करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल समझने के लिए फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम देंगे. चलो देखते हैं कैसे होता है, बट वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ओके चलिए बाय बाय. साइनिंग ऑफ नाउ. हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू.